Hello students, welcome to the third lecture of mathematical methods. Now we'll just have the revision of what we have studied in last two lectures. Actually you can visit the link and get revised if you have not attended those lectures. We started with definition of scalar, a physical quantity which can be completely described by its magnitude alone is known as scalar quantity. Then we discussed vector. Vector is a physical quantity which requires magnitude as well as direction for its complete description. Vector is represented graphically by a directed line segment. Direction of an arrow indicates the direction of the vector. Length of the segment drawn to the suitable scale gives us the magnitude of the vector. Vector is analytically represented by a bold-faced symbol or symbol with an arrowhead. Then we discussed regarding what is meaning of equal vector. Two vectors having equal magnitude and same direction are known as equal vectors. We discussed about null vector or zero vector. A vector whose magnitude is equal to 0 is known as null vector or zero vector. उसके बाद हमने क्या सीखा कि what is meaning of resultant vector. A single vector whose effect is same as that of the combined effect of given vectors is known as what? Resultant vector. And what is process of determining resultant vector known as composition of vector. Composition of vector अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं इट इज ऍडिशन ऑफ वेक्टर्स. ऍडिशन ऑफ वेक्टर्स मध्ये पहिला जो रूल आहे, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन द मॅग्निट्यूड ऑफ द रिझल्टंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मॅग्निट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर. and if two vectors, second rule काय, if two vectors are in opposite direction the magnitude of the resultant vector is equal to the difference between the magnitudes of two vector and its direction is same as that of a vector of a larger magnitude. त्यानंतर आपण पाहिलं की जर दोन वेक्टर्स पॅरलल नसतील, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये नसतील तर त्यांना कसं ऍड करायचं, त्यासाठी आपण काय शिकलो होतो? ट्रायंगल लॉ. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेझेंटेड इन magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of a triangle drawn from the starting point of first vector to the end point of second vector. फिर हमने वेक्टर एडिशन के दो प्रॉपर्टीज भी प्रूव किए थे. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. वेरी वी विल बी डिस्कसिंग नाउ अबाउट द सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. वेक्टर का सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे. मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ओके, एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड they ask me to find what is vector A minus vector B. What I have to do? I have to not find vector A plus vector B. मला काय करायचंय? सबट्रॅक्शन करायचं. vector A minus vector B. Okay. Now understand this part, how to do it. This is vector B. ठीक है? लेंथ इक्वल घेतो मी, पण डायरेक्शन अपोजिट घेतो. इथं लिहितो वेक्टर बी. हा काय आहे माझा? वेक्टर बी. मी हा जो दुसरा वेक्टर घेतलाय ना, इट इज ऑफ सेम लेंथ बट डायरेक्शन इज अपोजिट. सो इफ दिस इज वेक्टर बी, दिस इज व्हाट? माइनस वेक्टर बी. दिस इज अ नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर. A vector is said to be a negative of a given vector if it has equal magnitude but opposite direction. तो ये वेक्टर क्या है? वेक्टर बी. ये क्या है? माइनस वेक्टर बी. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. ओके, आता बघा कसं फाइंड आउट करायचं. मला काय फाइंड आउट करायचंय? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी. That means I have to take addition of what? Vector A and minus vector B. तो अब स्टार्ट करो O से. जितनी इसकी लेंथ है उतनी आप लेंथ ले लो, इसको बोलो A. तो ये क्या बना आपका? वेक्टर A. फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर. आपका सेकंड वेक्टर क्या है? माइनस वेक्टर B. वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, माइनस वेक्टर भी नीचे आ रहा है. देखो, जिसकी इतनी लंबाई है उतनी लंबाई लेनी है. अब मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस वेक्टर भी. और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर आप ज्वाइन करो. तो ये जो रिजल्टेंट आ गया आपका, ये रिजल्टेंट आपका क्या है? इट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी.
यानी आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर ए मायनस वेक्टर बी. सो ऍक्च्युअली जेव्हा तुम्ही सबट्रॅक्शन ऑफ वेक्टर करता तेव्हा तुम्ही ऍडिशनच करत असता, पण ऍडिशन ऑफ अ गिवन वेक्टर अँड अ निगेटिव्ह ऑफ व्हॉट, सेकंड वेक्टर. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस इन युअर नोटबुक. हे तुमच्या नोटबुक मध्ये या, व्हिडिओ पॉज करा, हे एक्झाम्पल लिहून घ्या सबट्रॅक्शनचं. आता आपण अजून एक एग्जाम्पल पाहूया. मेरे पास ये है वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड इज व्हाट आई हैव टू फाइंड वेक्टर P माइनस वेक्टर Q. ओके, वी फाइंड इट आउट. ये है वेक्टर P, ये है वेक्टर Q. तो ये जो वेक्टर Q है, सेम लंबाई ले लो आप, अपोजिट डायरेक्शन ले लो, तो ये क्या बना, नेगेटिव वेक्टर Q. अब मुझे वेक्टर P माइनस वेक्टर Q फाइंड आउट करना है, यानी वेक्टर P प्लस माइनस वेक्टर Q फाइंड आउट करना है. वेक्टर P की लंबाई जितनी है उतनी ही ले लो, जैसी उसकी दिशा है वैसी ही दिशा ले लो आप. ये बना आपका वेक्टर P. फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर P, फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर P ड्रॉ माइनस वेक्टर Q. वेक्टर Q की डायरेक्शन किस तरफ है, यहां पर एरो देखो आप, लेफ्ट की तरफ है. जितनी इसकी लंबाई है उतनी आप ले लो. ये क्या बना आपका, माइनस. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, इसको ज्वाइन करो तो आपका वेक्टर R क्या बन गया, बोलो मुझे. वो बना वेक्टर P प्लस माइनस वेक्टर Q, यानी क्या, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q. In this way we carry out what, the subtraction of the two vectors. Please even write down the second problem in your notebook. Now look at the diagram that I have given on the board. The question is determine the resultant of vector A1, vector A2, vector A3 and vector A4. अभी हमने जो लॉ सीखे हैं उसमें हमने क्या सीखा था कि to find the vector addition when two vectors are involved. But we see how we will solve this problem. Very easy to solve the problem. अब यहां पर देखो, मैं सिर्फ ये दो वेक्टर्स कंसिडर कर रहा हूं, वेक्टर OA रिप्रेजेंटिंग वेक्टर A1, वेक्टर AB रिप्रेजेंटिंग वेक्टर A2. अगर मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं, ये ट्राइंगल मैं कंप्लीट कर रहा हूं, okay, and I'll draw the arrow in this way. Look at this. In triangle OAB, वेक्टर OA, O से A तक, फिर A से B तक, O से A से B is equal to what, O से B. What is vector OA? Vector A1. What is vector AB? Vector A2. So this is vector OB. So what is vector OB is equal to? It is vector A1 plus vector A2. This we have written by which law? By triangle law of addition of vectors. Okay. अब ये काम करेंगे, अब ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये ट्राइंगल OBC. In triangle OBC, OB plus BC is equal to what? OC. Vector OB plus vector BC is equal to what? Vector OC. Okay. What is vector OB? Vector OB is what? Vector A1 plus vector A2. What is vector BC is equal to? Vector A3. ठीक है. अब ये लास्ट पार्ट हम करते हैं, ये ट्राइंगल अब ये हम ज्वाइन करते हैं. ये स्क्रीन पे आ रहा है ओडी, मिनट. ओके. अब यहां पर देखो, इन ट्राइंगल OCD, इन ट्राइंगल OCD, वेक्टर OC, O to C, C to D, vector CD is O to C, C to D is equal to what? O to D.
Therefore, vector OD will be equal to, what is vector OC? It is equal to vector A1 plus vector A2 plus vector A3. And what is CD is equal to vector A4. Therefore, what is OD? OD represents what? Resultant of vector A1, vector A2, vector A3 and vector A4. What does OD represents? OD represents the resultant of vector A1, vector A2, vector vector A3 and vector A4. अभी ये जो हम देखते हैं O, A, B, C, D, this is what? This is a polygon. Okay? तो हम क्या ये लॉ को ऐसा कह सकते हैं? If number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of an incomplete polygon, then the resultant is represented by the remaining side of the polygon drawn from starting point of first vector to the end point of second vector. इसको कहते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स. आपके टेक्स्ट बुक में स्टेट तो नहीं किया है, लेकिन आप याद रख सकते हो. ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम आप ये नोट डाउन करो और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम सीखेंगे. अब यहां पर देखो, मेरे पास एक वेक्टर है. फर्स्ट वेक्टर P1, सेकेंड वेक्टर P2, थर्ड वेक्टर P3, फोर्थ वेक्टर P4, फिफ्थ वेक्टर P5. और अगर मुझे पूछा आपने कि व्हाट इज वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस वेक्टर P4 प्लस वेक्टर P5, देन P1 का स्टार्टिंग पॉइंट और P5 का एंड पॉइंट को ज्वाइन करने का, दिस इज व्हाट यूर रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये जरूरी भी नहीं है कि जब आप वेक्टर्स को ऑर्डर में ले लो तो वो पॉलीगॉन ही बन जाए, ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं है. चलो अब इस पर बोलो मुझे आप वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3 एंड वेक्टर A4. अगर मेरा लास्ट वेक्टर का एंड पॉइंट और फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोइंसाइड हो गए, देन वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 प्लस वेक्टर A3 प्लस वेक्टर A4 क्या हो गया? नल वेक्टर. सो यू कैन ऐड नंबर ऑफ वेक्टर्स. यू कैन ऐड व्हाट? नंबर ऑफ वेक्टर्स. लेकिन जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, जब आप सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, तो आप ट्रायंगल लॉ ले सकते हो. अब इसके ऊपर इस ट्रायंगल लॉ के या आपके अपने अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर क्या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो अब हम डिस्कस करेंगे. इफ यू वांट टू टेक अ नोट ऑफ दिस, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस. Yes, look at the question that is written on the board. Which of the sets given below may represent the magnitude of three vectors adding to 0? चार ऑप्शंस दिए मैंने, A, B, C, D. आप अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो करो, वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखने के बाद आप सोचो कि आपका आंसर करेक्ट आया था कि नहीं आया. चलो मैं आपको एक 9th स्टैंडर्ड का एक ज्योमेट्री का एक बेसिक रूल सिखाता हूँ. पहले एक ट्रायंगल के बारे में, कि आप कोई भी एक ट्रायंगल लेते हो, कोई भी ट्रायंगल, ओके, ये है A, ये है B, ये है C. जो लॉन्गेस्ट साइड रहता है, लॉन्गेस्ट साइड C, इट इज ऑलवेज लेस देन A plus B. The sum of the two sides of a triangle, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. कोई भी आप, यानी B plus C is greater than A plus C is greater than B, A plus B is greater than C. कोई भी sum of any two sides of a triangle is always greater than what? The third side. Then only a triangle can be formed. Okay.
अब यहां पर देखो ये तीन वेक्टर्स है, ए बार, बी बार एंड सी बार, जिन्होंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया और मैंने एक साइकिल में इसको रिप्रेजेंट किया, ए बार, बी बार और सी बार। इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो ट्रायंगल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो वी कैन गेट द समेशन और रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट? 0। तब जब मैं ये फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखता हूं, 2, 4 और 8 लिखा है, कैन यू प्रिपेयर अ ट्रायंगल? कैन यू प्रिपेयर अ ट्रायंगल whose 3 sides are of length 2 units, 4 units and 8 units? सोच कर बोलो आप, क्या आप ऐसा ट्रायंगल प्रिपेयर कर सकते हो? नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों? बिकॉज इट, यहां पर देखो, व्हाट इज 2 + 4? 6, और रिमेनिंग साइड क्या है? 8। 6 इज लेस देन व्हाट? 8। 6 is less than 8, that means triangle cannot be formed. अगर ट्राइंगल आप फॉर्म नहीं कर सकते हो तो ये जो तीन मैग्नीट्यूड्स है, वेक्टर्स है, आप उनका एडिशन 0 कैसे करोगे? चलो मैंने वेक्टर पहले ड्रॉ किया 2, फिर सेकेंड वेक्टर ड्रॉ किया 4, तो जो 8 है तो वो ये और ये ज्वाइन होने के बाद वो ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए ना। अगर ट्राइंगल आप इन 3 साइड्स को लेकर नहीं फॉर्म कर सकते हो तो उसका एडिशन 0 नहीं आ सकता। क्या इन 3 वैल्यूज को लेकर आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो? क्या ये 3 वैल्यूज लेकर आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो क्या? देखो 4, 8, 16, what is 4 + 8? 12, and 12 is what? Less than 16. लेकिन ट्राइंगल के लिए क्या जरूरी है बोलो मुझे? द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? थर्ड साइड। और वो टेस्ट में फेल हो गया, यानी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता तो इसका सीधा मीनिंग क्या है कि आई कांट गेट इन दिस सेट्स द 3 वेक्टर्स whose addition is equal to what? 0। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, फिर थर्ड ऑप्शन को आते हैं। लास्ट ऑप्शन में 1 + 2 और 5, 1 + 2 कितना है? 3। 3 is what? Less than 5. It is not satisfying the condition. Which condition? Sum of any 2 sides of triangle is always greater than what? The remaining side. यानी क्या? ये भी टेस्ट में फेल हो गया, ये भी टेस्ट में फेल हो गया, ये भी टेस्ट में फेल हो गया। अब आता है सवाल 1, 2, 1 का। ओके, 1 + 1 करो। 1 + 1 कितना है? 2। 2 और 2 क्या आ गए? इक्वल आ गए। ग्रेटर देन साइन नहीं आया तो आई कांट हैव द ट्राइंगल इवन विद दिस। बट जब आप इक्वल आते हैं तो आप यहां पर देखो कि ये है 1, 2, 1, मैं इसको ए बार कहता हूं, इसको बी बार कहता हूं और इसको सी बार कहता हूं। ए बार प्लस सी बार, ध्यान से देखो, अगर ए बार ऐसा है इस डायरेक्शन में, बी बार इस डायरेक्शन में, नहीं बी बार नहीं, सी बार। ओके, ए की मैग्नीट्यूड कितनी है? 1। सी की मैग्नीट्यूड कितनी है? 1। और बी बार अगर ऐसा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में, then what is a + c + b? It will be equal to what? 0, क्योंकि a + c + b। आप उल्टा होगे ना, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, डायरेक्शन हमें चुनना था। विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में, तो डायरेक्शन चूज करने को आपको दिया था, तो मैंने a की डायरेक्शन ऐसी ली, c की डायरेक्शन ऐसी ली और b की ऐसी ली। तो a + c कितना आएगा? 2 towards what? right. b is what? 2 towards what? left. इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको ये आंसर आपका बन गया करेक्ट आंसर, एंड दिस वाज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। ये सवाल पहले पूछा भी गया है। आपको समझ में आ रहा है? चलो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन रखो, सिर्फ मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं।
आप प्लीज ये नोट डाउन करो, पॉज द वीडियो, नोट डाउन प्लीज। A B C D 3 8 14 5 12 3 7 17 5 6 3 and 1। 6 3 1 में 6 3 4। आप सोचो इसके बारे में, सोचकर बोलो, घाई नाही आपल्याला। आता मी सॉल्व करतो प्रॉब्लेम। ओके, तो पहले मुझे क्या देखना है कि मैं कोई भी वैल्यूज लेता हूं, कोई भी वैल्यूज, a प्लस b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू c। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, आप इसको किसको भी आप a कह सकते हो, b कह सकते हो, c कह सकते हो। आपको नॉर्मली आपको c कौन सा लेना है, ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। चलो इसमें ग्रेटर मैग्नीट्यूड क्या है, 14, रिमेनिंग क्या है 3 प्लस 8। व्हाट इज 3 प्लस 8? 11। 11 इज लेस देन 14, टेस्ट फेल। क्या चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल। इसमें बड़ा कौन है 12, छोटे दो कौन है 5 और 3। 5 प्लस 3 कितना है 8। इज 8 ग्रेटर देन 12? नो। तो ये भी इस टेस्ट में क्या हो गया, फेल हो गया। सी क्या चाहिए, सी याद रखो, यहां पर सी को किसे लेना है, जिसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड है उसको लेना है। ठीक है, थर्ड इसमें देखो, इधर का है ना 17, रिमेनिंग कौन है 7 और 5। 7 और 5 कितना है 12, लेस देन, फेल। लास्ट देखते, सी क्या लेना है आपको 6। ये क्या बचे 3 और 4। 3 प्लस 4 कितना है 7। 7 इज ग्रेटर देन 6। तो ये जो है इट सेटिस्फाइज द कंडीशन एंड दिस सेट में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स whose addition is equal to what, 0। समझ में आया? ये आपको, अगर आपको मैथमेटिकली प्रिंसिपली समझ में आया ठीक है, नहीं तो ये याद रखने का। कंडीशन क्या है, a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। सी किसे लेना है, जिसकी ग्रेटर मैग्नीट्यूड है। और बचे हुए जो है वो एक a है और एक क्या है b है। आई बात समझ में? इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको एमसीक्यू का अप्रोच डेवलप होना बेहद ही जरूरी है। Yes, look at this next question. If 3 vectors a, b and c are 12, 5 and 13 in magnitude such that c bar is equal to a bar plus b bar, then the angle between a bar and b bar is, 4 ऑप्शंस दिए। सवाल तो बहुत आसान है, करेंगे हम। 12, 5 और 13 ये नंबर्स देखने के बाद अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद आता है, दैट मीन्स यू हैव स्टडीड 9th and 10th स्टैंडर्ड। 12, 5 और 13 दिस आर द साइड्स ऑफ व्हाट, एन राइट एंगल ट्रायंगल। बराबर है? What is 5 square? 25. 12 का स्क्वायर 144. 144 plus 25 169. 169 का स्क्वायर रूट 13. By converse of Pythagoras theorem, this is what, a right angle triangle। चलो अभी a की मैग्नीट्यूड कितनी दी उन्होंने 12, a की मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं अब a की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट ले रहा, a प्लस बी है ना, b की कितनी है 5। ये रहा मेरा a बार, ये रहा मेरा b बार। a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार इज इक्वल टू व्हाट, c बार।
ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार, सी बार इज इक्वल टू ए बार। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है ट्रायंगल ने? आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके देखो, अच्छी बात है। सवाल क्या है? द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार और बी बार में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन। और अगर आप नीट दे रहे हो तो आपको मिलेंगे +4। Taken, you must be able to construct the triangle. Okay. आता मी एक प्रॉब्लेम देतो तुम्हाला मी, आणि आय एम एक्सपेक्टिंग that you will solve this. 3 vectors A, B and C. You take a note of this. मैं प्रॉब्लम चेंज कर रहा हूँ. 3 vectors A, B and C are of equal magnitudes. तीनों इक्वल है, A, B और C, such that A bar plus B bar plus C bar is equal to nulla vector. That angle between A bar and B bar is. चलो मैं ऑप्शंस वही रहता हूं, सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। सोचो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या आपको जमता है क्या प्रॉब्लम? 3 vectors A, B and C are what? वीडियो को पॉज करो, प्रॉब्लम कोशिश करो। यस, लुक एट दिस सॉल्यूशन। लुक एट दिस सॉल्यूशन। A, B and C इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी ये क्या बना? कौन सा ट्रायंगल बना रे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके। A बार प्लस B बार प्लस C बार इज व्हाट? नल वेक्टर। यानी ये रहा A बार, ये रहा B बार और ये रहा C बार। अब देखो डायग्राम में A बार प्लस B बार प्लस C बार कितना आया? नल्ला वेक्टर। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? A बार प्लस B बार प्लस C बार इज 0? यस। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन A बार एंड B बार? ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। आंसर क्या रहेगा? 60 डिग्री। अगर आपका आंसर है 60 डिग्री तो आपका आंसर गलत है। क्यों? देखते हैं। उन्होंने क्या पूछा अपने को? एंगल बिटवीन ए बार। ओके। ए बार, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए बार? टुवर्ड्स राइट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ बी बार? इन दिस वे। सो दिस इज द एंगल बिटवीन व्हाट? ए बार एंड बी बार। ये है एंगल। जब आपको बचपन में एंगल सिखाया गया था तो एंगल्स ऐसा सिखाया गया था क्या? ऐसे सिखाया गया था? ये गलत है ना? ऐसा। इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन व्हाट? 2 डायरेक्शन। ए बार की डायरेक्शन ऐसी है, बी बार की डायरेक्शन ऐसी है। दिस इज नॉट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, दिस इज द एंगल बिटवीन व्हाट? A bar and B bar. And now tell me if this angle is 60 degree, this angle is what? 120 degree. And hence angle between A bar and B bar is equal to what? 120 degree. That's all for the today's session. बस अच्छे 2-3 प्रॉब्लम्स हमने जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो लिए। कल का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा पैरेललोग्राम लॉ पर, और उस पे बेस न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे।